So let's start chapter number 2, polynomials, page number 28. Now beta, first of all, write down the definition of polynomials. What is a polynomial? Write down. It is a combination of algebraic expressions. It is a combination of algebraic expressions in which the power of the variable is always positive. It is the combination of algebraic expression in which the power of the variable is always positive. So what is basically a polynomial? Look here on the board. Combination of algebraic expression. जैसे आपके पास है suppose 7x square plus 4y, right? This is a polynomial. Yes, this is a polynomial. Nobody will write, just listen to me. This is a polynomial. Here, beta, we are having how many variables? We are having 2 variables. X is also the variable, y is also the variable. X की power क्या है 2, y की power क्या है 1. ठीक है? So this is a polynomial. 4x cube plus 7x square plus 3x. Is it a polynomial? Yes. This is also a polynomial. Now this is a polynomial only in one variable. मतलब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है. कौन सा है? x. यहाँ x की पावर क्या है 3, यहाँ 2, यहाँ 1. But it is a polynomial as we can see the degree or you can say the power of the variable is positive. If you have 7x raised to power minus 1. Now this is a polynomial? No, because the power is negative. Or we say 1 by x. Is it a polynomial, this 1 by x? Now you will say, ma'am, power is positive. But here, whenever we have to answer, we have to see that in the polynomial, the variable should be in the numerator. Denominator में नहीं. जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? X raised to power minus 1. है ना? You have done exponents and power. If you have 3x raised to power minus 2. अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं? उस वेरिएबल को ऊपर ले जाते हैं और पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव. राइट? सो x की पावर 1 डिनोमिनेटर में है. अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बी x raised to power minus 1. So it will not be a polynomial. So what we can say that if the variable is in the denominator, like if we have 7 raised to power x plus 1, is it a polynomial? No, it is also not a polynomial. Root x. Root x is what? X raised to power 1 by 2. अपनी definition में add करो. Combination of algebraic expressions in which the power of the variable is positive whole number. Positive whole number. Means power जो है वो fraction में भी नहीं होनी चाहिए. Whole numbers होने चाहिए. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Right? 1 by root x plus root y. Only cube root of 5. All the numbers which are in root, जो means the surds. I told you root वाले numbers को हम क्या बोलते हैं? Surds. They are also not a polynomial. So what is the polynomial? Combination of algebraic expression in which the power of the variable is positive whole number. ठीक है? I hope it is clear. Next, बच्चे, you have done already types of polynomial. So we will quickly discuss it.
पॉलिनोमियल की आपने डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक में बस। उसके बाद ये सिर्फ सुन लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट इन फेयर। 1 minute, यस अपरण। मैम रूट एक्स कैसे नहीं हो सकता पॉलिनोमियल? बेटा रूट एक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स रेज टू पावर 1/2, इज इट और नॉट? एक मिनट अपरण बेटा, अनम्यूट मत किया करो क्वेश्चन पूछकर साथ ही। रेज योर यस हैंड। मैम। हाँ जी ठीक है ना, फिर वो समझ नहीं आता कि आपको समझ आया कि नहीं, मैं अकेली बोलती रहूंगी आपको। ठीक है, ये आपको ओके पता है मैम। कि रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2, यस मैम। है ना? तो यहाँ पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में आ गई या रैशनल नंबर? ठीक है ना? यस तो मैम। पावर क्या होनी चाहिए हमेशा? होल नंबर, मीन 0 1 2, ना तो डेसिमल में होनी चाहिए पावर, ना फ्रैक्शन में, ना नेगेटिव। ऐसे ही अगर हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ एक्स, इट मीन्स व्हाट? एक्स रेज टू पावर 1/3। ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स रेज टू पावर 1/4 एंड सो ऑन। सो वी the power is positive but not the whole number, so therefore it is not a polynomial. Okay, मैम मीन्स पॉलिनोमियल जो वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होगा वो होल नंबर होना चाहिए और पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ जी, ओके मैम। पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल ओके। नंबर। यहाँ तो पॉजिटिव है पावर, लेकिन होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यस कभी मैम। भी ऐसे p/q फ्रैक्शन की फॉर्म में तो होल नंबर नहीं ना होते। तो अगर पावर आपकी ऐसे आ जाती है फ्रैक्शन में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके मैम। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर मीन्स इन विच द पावर of variable is 1, 7x plus 9। ठीक है, चाहे आप 9y ले लो, 9y ले लो, यहाँ पर क्या है? वेरिएबल की जो पावर क्या है वो है 1, the power of the variable is 1, so this is a linear polynomial। ठीक है, quadratic means पावर कितनी होती है बेटे? 2, for example 2x square plus 7x plus 3। Now here see, look on the board. Here we are having the power of the variable 2 and also 1. So you will say, ma'am यहाँ पर तो power 1 भी है, तो can it be a linear? No, because जो भी आपके पास polynomial होता है उसमें आपने जो maximum power होती है उसी को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग बताना है that it is what type of polynomial, is it quadratic or linear or whatever। ठीक है, और बेटा जो पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आगे करेंगे। सपोज द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री मींस मैक्सिमम पावर, सो डिग्री इज 2। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्या है? 2। क्यूबिक मींस मैक्सिमम पावर 3, 7x क्यूब प्लस 4। सिंपल ऐसे, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स हो ना हो, बट आपने देखा एक्स की पावर क्यूब है, इसका मतलब इट मींस इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? बाय क्वाड्रेटिक मींस बेटे पावर 4, पावर 4, 9x raised to power 4 plus 3x cube plus 2. The maximum power is 4, so it is known as biquadratic polynomial। बस
अगर आगे पावर 5 हो, मैक्सिमम 6 हो, तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, वो उसको हम बोलते हैं जनरल पॉलिनोमियल होता है। पावर जिसकी हो 5, नो पर्टिकुलर नेम वी हैव फॉर दैट, फॉर सच पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना बेटा? एनीवन? इज इट क्लियर? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। 1 मिनट। यस धीरेन। मैम अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया होता है 7x क्यूब एंड x दिया होता है या y दिया होता है, तो उसमें उसकी डिग्री क्या होगी फिर? दोबारा बोलो, कैसा पॉलिनोमियल का? कोई 7x क्यूब y दिया होता है, y की वैल्यू 1 होती है, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 4 करवाऊंगी आगे। इफ यू हैव this is what type of polynomial? Here the power is 4. ठीक है, डिग्री कितनी है? 4। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना पावर्स, 3 + 1 4। वैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, पॉलिनोमियल हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हम लर्न करेंगे। अदरवाइज वैसे अगर ये पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 4। नाउ इज इट ओके धीरेन? यस मैम। अभी हमने किए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड लाइक दिस। नाउ वी विल रिवाइज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, on the basis of terms. Remember, monomial, binomial, trinomial, quadrinomial and so on. So monomial means one term, 7x, पावर जो मर्जी हो, 7x, 4x क्यूब, 9x to the power 4, all are monomials, all are monomials. अगर आप ये लो, only number 8, this is also a polynomial, जो कि what type of polynomial? It is a monomial. Monomial मतलब single term. Term you know, you have done in detail in your 8th class. Terms क्या होती हैं? Terms are those which get separated by a positive sign or negative sign. जैसे binomial देखो, binomial का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या है? 2 terms. जैसे 7x plus 4y, 9y minus 3, 8x cube plus 4x square. Here how many terms we can see? 2 terms, 2 terms, 2 terms. So thereby it is what? It is binomial. Sometimes the question comes like, 1 minute. Sometimes the question comes, tell what type of polynomial is this on the basis of terms and degree. तो आप क्या लिखोगे? It is a binomial and linear polynomial. It is a binomial and linear polynomial. Linear क्यों? क्योंकि पावर क्या है? 1. Binomial क्यों? क्योंकि कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स. फाइन. अभी ये कांस्टेंट वाला बाद में दोबारा करवाती हूँ, पहले ट्राइनोमियल देखो. ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स. 1 मिनट. यस दिव्यांशी. मैम आपने कहा कि इसकी डिग्री से भी आ सकता है पूछना, तो मैम अगर एक टर्म की डिग्री 1 है और दूसरी की 2 है, तो हम लीनियर लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे? अभी बताया बेटे, अगर आपके पास ये है, मैंने अभी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करवाया था उसी वक्त आपको एक्सप्लेन किया था. सपोज आपके पास ये आ जाए, नाउ इट इज व्हाट? इट इज बाइनोमियल, क्योंकि कितनी टर्म्स है?
2 terms. Why you people mute yourself after asking the question? दिव्यांशी, है ना बेटा, म्यूट नहीं करना है. रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं क्या आपको समझाऊंगी, खुद ही बोलती रह जाऊंगी. आपको आपकी क्वेरी तो मेरे तक पहुंचेगी नहीं. It is a binomial, yes or no? Yes, ma'am. Now it is having 2 power. मतलब 3, 2 पावर्स है, इसमें 3 भी है और 2 भी है. आपने जो बड़ी वाली पावर है वो कंसिडर करनी है. What is the max bigger power? 3. So it is what type of polynomial? Cubic polynomial. Cubic. Okay, ma'am. ठीक है? Fine. Now you can mute. Trinomial is what? In which we are having 3 terms. जैसे ये 4y plus 3x minus 9. 3 terms होनी चाहिए, चाहे प्लस हो बीच में, चाहे बीच में माइनस हो, right? And quadrinomial means बेटे 4 terms. X plus y plus z plus w. This is also a quadrinomial. ठीक है? All are polynomials. With one term उसका name हो जाता है specific monomial. 2 terms binomial. 3 terms trinomial. 4 terms quadrinomial. और अगर 4 से ज्यादा terms हो तो it is general, क्या बोलते हैं हम उसको? Polynomial. One more type नहीं कह सकते, name constant polynomial. Constant polynomial. What do you mean by constant? जैसे 7 है, ठीक है? 7 is what? It is constant. इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. ठीक है? 9 नंबर है. 9 is also a constant polynomial. And monomial, constant polynomial is also, it can be said as monomial also. मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म. मोनोमियल में वेरिएबल भी आ सकता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस विदाउट द वेरिएबल. लेकिन कितने हैं? एक ही टर्म है तो हम उसको मोनोमियल भी बोल सकते हैं. बोर हो रहे हो? हाँ रिद्धिमा, समझ आ रहा है? दिल नहीं लग रहा? सैड हो? हाँ, इतनी मुश्किल से क्यों पढ़ रहे हो फिर बच्चे? इंटरेस्टिंग है, आपने किया हुआ है सारा पहले. यस अपरन. मैम मोनोमियल्स को मतलब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं? नहीं, मोनोमियल को कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कांस्टेंट को कह 7x सकते हैं. हाँ, कांस्टेंट को मोनोमियल कह सकते हैं. ठीक है? ओके आगे मैम. और पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका वेरिएबल क्या होता है, जीरो क्या होता है, डिग्री क्या होती है, बट अभी बिगिनिंग है ना. और मैम ठीक है? जैसे आपने लिखा है क्वाड्रिनोमियल में 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये मैम x तो सेम है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं फर्दर. तो जब हम ऐड कर देंगे ये तो ऐड नहीं कर ट्राइनोमियल सकते. ही बन जाएगा. ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x क्यूब है. ये लाइक टर्म्स थोड़ी हुई. क्या ये लाइक टर्म्स है परन? नो मैम. और कभी भी पावर्स को आप तभी ऐड कर पाते हो अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो. जैसे ऐसे हो 4x क्यूब इंटू 2x स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं? 4 2s are 8, x क्यूब इंटू x स्क्वायर, सेम बेस, पावर्स गेट एडेड, तो ये बन जाता है 8x रेज टू पावर 5. क्यों बनता है? हम पावर्स को ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई है. अगर प्लस माइनस है तो कुछ नहीं कर सकते, वहीं पे छोड़ना होता है. मैम अगर सिंपल ऐसे हुआ x plus x and we have to tell whether it is monomial or binomial, so we will write it is monomial. then you will combine. अगर आपके पास आ जाए what it is x plus 3x, तो अगर आप इसको binomial लिखोगे तो it will obviously wrong. These are like terms. x plus 3x will become 4x, so it is a monomial. Okay मैम. अगर like terms है तो combine करनी है.
लेकिन अगर लाइक टर्म नहीं है फिर आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। ओके मैम। ओके। यस रिद्धिका। मैम आपने बोला कि जैसे मोनोमियल, जैसे कांस्टेंट है हम उसको मोनोमियल बोल सकते हैं, बट मोनोमियल को कांस्टेंट नहीं बोल सकते। बट एग्जांपल में तो मोनोमियल के 8 आया और कांस्टेंट में भी 9 7 थे जिसके पीछे वेरिएबल नहीं लग रहे, तो वो दोनों आपस में क्यों नहीं बोल सकते हम उन्हें? बेटा देखो ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है वो कितनी टर्म है? सिंगल टर्म है यस ना? मैम। तो सिंगल टर्म मीन्स मोनोमियल आल्सो। ये दो, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है ना, 8 नंबर है, तो ये क्या है? मोनोमियल। और ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आल्सो एज इट डज नॉट हैव एनी वेरिएबल। ठीक है। अगर आपके पास है 7x तो इट इज व्हाट? इट इज मोनोमियल। Is it a constant polynomial also? No, because variable No. is there. Because variable is there. तो अगर कोई नंबर सिंगल नंबर है उसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं और मोनोमियल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सिंगल है। जैसे आप हमें ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये तो आपने डिटेल में किया हुआ है। 7x plus 4y plus 3 जनरल। तो what is 7? This is coefficient of x. 4 क्या है? coefficient of y. and 3 क्या होता है? constant. ठीक है ना? 3 क्या होता है? Yes, constant. ये अब है क्या? ट्राइनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर as the power is 1. ठीक है। अब यहाँ पर आप x और y को कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग हैं विद प्लस साइन। yes, ठीक है, ma'am. समझ आ गई? अगर सपोज Okay. suppose you are Thank having you, ma'am. a number 7x square y cube z 7x square y cube. Is it a what type of polynomial it is? Monomial or binomial? Monomial. मोनोमियल। क्योंकि ये सिंगल टर्म है, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई से टर्म्स डिफरेंट नहीं होती, प्लस या माइनस से होती हैं। ठीक है। और इसकी Okay, डिग्री ma'am. क्या होगी? डिग्री क्या होगी? 3. डिग्री 3 नहीं होगी, डिग्री होगी 5। क्योंकि पावर अगर अलग अलग भी हो तो बेस अगर अलग अलग भी हो सिंगल टर्म में तो पावर्स क्या होती हैं? प्लस। ये आगे करवाऊंगी डिटेल में। और अगर साइन हो कोई तो फिर उसमें से बड़ी डिग्री बतानी है। हाँ, अगर ऐसे हो तो फिर बड़ी वाली 3। ओके मैम। म्यूट योरसेल्फ नाउ। यस जसलीन। मैम अगर 7 + 9 है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो फिर भी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ही काउंट होगा। 7 + 9 is what? 16. So 16 is a monomial and a constant polynomial. लाइक टर्म्स अगर हैं तो उसको तो हम कंबाइन करेंगे ना बच्चे। ओके मैम। अभी पहले आ जाओ एक्सरसाइज 1 पे 2.1, फिर बीच में से जो और चीजें हैं वो आपको करवाऊंगी। पहले सारी इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे बेटा। पेज नंबर 32। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. So 4x square minus 3x plus 7. Here we need to tell that whether the polynomial is in one variable or not. मतलब पूरा जो एक्सप्रेशन है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही अल्फाबेट, चाहे x या y। ठीक है, तो दिस इज यस। पहले तो आपने देखना कि पॉलिनोमियल है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड द वेरिएबल इज ओनली x। मतलब x के डिफरेंट पावर्स तो हैं लेकिन कोई और वेरिएबल नहीं है, y नहीं है साथ में, z नहीं है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल विद, इसको टिक कर लो बुक में ही। ठीक है। सेकंड, y square plus √2.
Now is it a polynomial or not? Tell me. Raise your hand. Yes, Renuka. Ma'am, it is not a polynomial Why? because root 2 is there. Root 2 is there. Anyone else? Ritika, Ma'am, it is not a polynomial. It is why? मैम बिकॉज जो रूट 2 की वैल्यू है उसके अंदर जो हमारा जो वेरिएबल है वो y नहीं है, दिव्यांशी, सेम वेरिएबल नहीं है. Ma'am, yes, it's not a polynomial because of root 2. all are wrong. All are wrong. पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने क्या की थी बेटा? It is the combination of algebraic expressions in which the power of the variable is positive whole number. Power of the variable. यहाँ कोई वेरिएबल है? वेरिएबल क्या है? y. उसकी पावर क्या है? 2. Positive whole number. And there is only single variable. So yes, it is a polynomial with one variable. Constant की वैल्यू जो मर्जी हो, y square root 2 means 2 raised to power 1/2. हमने ये बता, अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, बट जो कांस्टेंट है साथ में वो जो मर्जी हो, रूट 2 हो, y स्क्वायर प्लस 0.003 हो, y स्क्वायर प्लस 9.436 हो, जो मर्जी हो, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए. इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो हैंड अप रखो, बाकी नीचे कर लो. यस अपरन. मैम ये वाला समझ नहीं आया. बेटा समझ आएगा, आगे देखो, अभी बताती हूँ. जैसे आपके पास थर्ड पार्ट है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, ठीक है. अब आपने देखा कि यहाँ वेरिएबल तो एक ही है, ध्यान से समझो, वेरिएबल तो एक ही है, बट उन्होंने पूछा कि क्या ये आप ये बताओ कि आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल. तो अगर बच्चे इसको लिख दें फटाफट से देख के कि हाँ जी वेरिएबल 1 है, यस, तो इस केस में आंसर क्या है? नो. व्हाई नो? बिकॉज व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल इज टी, और टी की पावर बच्चे क्या है यहाँ पर? रूट टी. तो मतलब टी रेज टू पावर 1/2 प्लस टी रेज टू टी इंटू रूट 2. जो मर्जी हो आगे टर्म्स, बट हमारे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई. अगर यहाँ चाहे जो मर्जी हो, 1 हो प्लस टी4 हो, मैक्सिमम पावर चाहे हमारी पॉजिटिव होल नंबर है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन में एक बार भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में या कह लो रूट में आ गई तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एंड व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल? ये यस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव है. कांस्टेंट जो मर्जी हो, ये थोड़ी आपने देखना है कि इसके साथ y है या नहीं है. नो, ये अलग टर्म है, कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म जो मर्जी हो, we are not concerned with that when we have to tell that whether is it a polynomial or not. ठीक है? तो आपने वेरिएबल देखना, वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव होल नंबर है देन इट इज अ पॉलिनोमियल. यहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर नहीं थी, रूट फ्रैक्शन में आ गई, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. जब पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर एक वेरिएबल हो ना हो वो आंसर आप लिखोगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है?
Riddhika, is it okay? हाँ जी रिद्धिका, कहाँ हो? फाइन। पूछना भी है कुछ? नहीं मैम, इसी मैंने तरह से- बोलना था। ठीक है। ठीक है, वो मैंने ऐसे देख लिया था। ये क्वेश्चन खत्म करते हैं बेटे। y प्लस 2/y। अब यहाँ y की पावर 1 है, लेकिन एक y हमारा डिनोमिनेटर में भी आ गया। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। y, क्योंकि ये क्या बनेगा, y प्लस 2y रेज टू पावर -1। लिखना नहीं लिखना है, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट आपके पास है x रेज टू पावर 10 plus y cube plus t raised to power 50. Look here on the board. Now this is a polynomial. Yes, of course it is a polynomial because here the power of the variables are positive. But according to our question, this is not a polynomial in one variable. यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? 3। तो क्वेश्चन में है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जो कि 1 वेरिएबल के साथ है। तो आंसर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट इज यस, अदरवाइज सब क्रॉस है। बुक में ही कर लेंगे, फर्स्ट 2 पार्ट पे टिक, थर्ड फोर्थ पे क्रॉस। ठीक है, नोटबुक में बेटा आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख लेना। ठीक है, जितना मैंने करवाया बस शॉर्ट में लिख लो, उतना ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज टुमारो। टेक केयर, बाय।